Okay, hello, assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are doing well and you all are fine with your friends and family. Let's start our class with the name of Allah first of all. And today our topic is tenses. We have already studied about sentence structure in our past 4 classes, and I guess you all now understand sentence structure very clearly. Am I right? Now you all are able to tell me about any kind of a structure if I will ask you. Am I right or not? It means sentence structure is very much clear to all of you. Right, Abdullah? All right, so let's start our class. Today, as I have already told you yesterday, that today we are going to study about tenses. And let's start. Okay, so basically, yesterday, no, not yesterday, in our past 4 to 5 classes, I have told you so many times before making anything, we always should know the recipe, the procedure, or the method of that particular thing. I have given you example of cake. Like before making a cake, we should know the recipe of cake, right? Am I right? Same we did with the sentence structure. We learn each and every step of sentence structure, that how many structures are there, how many types of sentences are there. We studied each and everything. We studied in detail that what is dependent, what is independent. Am I right? Now, as we are talking about tenses, I am going to tell you one more thing. Do you all have your worksheet pack in your hands? Do you all have your worksheet packs? Okay, in your worksheet pack, when you will see page number 1, writing complete sentences. On the back, RS on the back. Yes, this one. जो आपके इंग्लिश वर्कशीट पैक के बिल्कुल बैक साइड पे पेज है ना, राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस वाला, टेक आउट दैट पेज. Yes, exactly, yes. Mariam Fatma, why your camera is not open there? Dua Khan, can you please open your camera and do not close it again? Dua Khan. Yes, show me the worksheet, Dua. Yes, Mariam, you want to ask something? Okay, I ask you to unmute yourself. Yes, Miss, I want to say that I have to get my backpack since I'm in another room. My all right, sister just is go, using go laptop. quick, do quick. Go fast and come back in 2 minutes. Everybody listen to me. From now onwards, in every of our class, whether it's science class or it's English class, keep your worksheet packs with yourself. Okay? I won't allow you from next time to just go and get your worksheet packs. Yes, Kissa? Miss, Yes. Miss, I have to ask this. I don't have that page. Which page, Which Kissa? page you are saying? Kissa, yes, after this, इस वाले पेज के बिल्कुल बैक पर. Look, Dua is showing. Dua, can you show that page? Not this one. Everybody is showing the page. Everybody is showing the page. Look, Hassan Raza is also showing that page. Aris is also showing that page. Not this one.
must be in your Yes, worksheet yes, pack. I got it. You This got it? one? Yes, this one. Yes. Okay. Is Mariam back? Mariam is not back. Yes, Mariam, you got the worksheet? Okay, open that page first. Yes, open that page, which is everybody showing. I guess it is at the back of this page, the page on which, no, not this one. Look, as Hassan Raza is showing that page, writing complete sentences is written on the top of that page. Do you find it? Yes, very nice. Okay, so everybody now look on that page, writing complete sentences. A sentence is a complete thought that is made of a subject and a predicate. We have already discussed about it कि sentence किस तरीके से बनता है, उसमें एक subject होता है और एक predicate होता है. Subject किसको बोलते हैं? Subject वो person और that person who is doing work. Subject कौन होगा? अगर मेरा sentence है I am a Sabrina, so what is the subject in this sentence? I is the subject in this sentence. Okay, I is the, hello Inaya. Inaya, you are late, you know that, right? You are very much late. I won't allow you from next class. Okay, हमने अभी तक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे. देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ है द सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज. अब मैं आपको देती हूँ सब्जेक्ट की एग्जांपल. मैंने आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट की एग्जांपल दे दी है कि आई एम अ सबरीना. In this sentence, I is a subject. If I will say, Mariam is a good girl, what will be the subject in this sentence? Mariam is a good girl. What will be the subject in this sentence? Yes, Hassan Raza, and I unmuted you. Yes, Hassan. Tell me. Is. Mariam is a good girl. What Is will be will the be a subject? Is. What? Is. But is. See, I told you, subject वो person होता है जो काम कर रहा होता है. मरियम इज अ गुड गर्ल, जिसके बारे में बात हो रही होती है. ठीक है, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? हु इज अ गुड गर्ल? Mariam is a good girl. Yes, yes. Nurul Hadi, I ask you to unmute yourself. Yes. Teacher Mariam. Yes, Mariam is the subject of this sentence. ठीक है, Mariam is the subject of this sentence. Understand? Acha, Jafar Raza, I ask you to unmute yourself. Jafar. Jafar, I ask you to unmute yourself. Okay, Jafar, I will give you a one example. Then I will ask you what will be the subject in that sentence. Okay, the example is ice cream is very cold. What will be the subject? Ice cream. Very nice. Excellent, Jafar. Excellent. Excellent. Ice cream is the subject. Okay. Now, Mariam, it's your turn. I ask you to unmute yourself. Yes. Okay, I am muted. Okay, Mariam, your example is we are taking online class today.
The subject is we. Yes, very good. Subject is we. तो सबको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है? Yes, fine. अब प्रेडिकेट पर आते हैं. बेसिकली प्रेडिकेट के अंदर आपका आ जाता है वर्ब और ऑब्जेक्ट. आपका क्या आ जाता है? वर्ब और टीचर, यस सबिका. आप जो पढ़ा रही हैं वो नजर नहीं आ रहा. Sabika, do you have the worksheet pack? Yes. Can you open that page which I have told you to open? Do you know which page you have to open? I guess you know. Let's move forward. Okay. What is predicate? Basically, predicate is Sabika, show me. Show me, Sabika, which page you have open. I cannot see clearly, Sabika. Can you get this closer? Yes, very nice, Sabika. Yes. I'm talking about this. Very nice. Sabika, as I have told you yesterday, sentence structure na. So today I am going to tell you एक sentence के अंदर क्या क्या basic ingredients होते हैं, which is subject and a predicate. मैंने subject अभी आपको define किया, जिसके बारे में sentence में बात हो रही होती है या जो बंदा काम कर रहा होता है, this thing is called subject. जैसे I am a girl में मैं बोल रही हूँ I am a girl, मैं एक लड़की हूँ, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, तो I is the subject. आइसक्रीम इज कोल्ड. अगर मैं यहाँ बोलूँ आइसक्रीम ठंडी है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आइसक्रीम के बारे में बात हो रही है, तो आइसक्रीम विल बी द सब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? प्रेडिकेट में आपके पास आ जाता है वर्ब और ऑब्जेक्ट. वर्ब सबको पता है, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. ठीक है. उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है, जिस चीज के ऊपर काम किया जाए. जैसे आइसक्रीम इज कोल्ड, इसमें आइसक्रीम तो हमारा हो गया सब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? हु विल टेल मी? आइसक्रीम इज कोल्ड, आइसक्रीम ठंडी है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? जारा, आई आस्क यू टू अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, Zara. What will be the object? Cold. Very nice, Zara. Excellent. Excellent. Cold will be the object. Why? Because हमने बात किसकी हो रही है? आइसक्रीम की. और आइसक्रीम के बारे में बताया क्या जा रहा है कि आइसक्रीम ठंडी होती है, तो cold will be the object. I guess now you all will get it. Am I right? Mariam, understand? Do you want to ask anything? You want to ask anything? Okay. अब हम आ जाते हैं. अभी तक हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर्स. अभी तक हमने क्या पढ़े थे? स्ट्रक्चर्स. अब हम सेंटेंस टाइप्स पढ़ रहे हैं. हमने अभी तक सेंटेंस स्ट्रक्चर की टाइप पढ़ी थी, अब हम सिर्फ सेंटेंस टाइप्स पढ़ रहे हैं. देखें, the 4 sentence types, which are statement, declarative sentence, question, interrogative sentence, exclamation, exclamatory sentence, command, imperative sentence. स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होगा? जिसमें आप कोई भी एक स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे कि I am a girl is a statement. I am a girl is a statement. ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? मरियम इज अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, वी आर गोइंग टू स्कूल. और इसके अलावा मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस जो होते हैं, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेंट फॉर शॉपिंग, दीज ऑल आर स्टेटमेंट सेंटेंसेस. दीज ऑल आर स्टेटमेंट. अब आते हैं हम क्वेश्चन सेंटेंस. क्वेश्चन सेंटेंस ही आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू से. आ गया समझ में? क्वेश्चन सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे आस्क किया जाता है क्वेश्चन. What is your name? Where are you going? What are you doing? What is this? Whose pen is this? Whose pencil is this? Whose book is this?
व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपी, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं WH वाले, या इज इट कोल्ड, आर यू गोइंग फॉर अ शॉपिंग, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपसे सवाल पूछे जा रहे होते हैं, ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोला जाता है? आपने सुना है जब हम मूवीज देखते हैं तो मूवी में बोला जाता है ना, जैसे पुलिस के बारे में कोई भी बोलते हैं इंटेरोगेशन रूम, या इंटेरोगेशन के लिए लेकर जा रहे हैं, ऐसा कुछ वर्ड सुना है किसी ने? इंटेरोगेशन टाइप का कोई वर्ड सुना है? यस मरियम। मूवी में अक्सर आपने देखा होगा, पुलिस के भी बारे में जब बात होती है तो आपने देखा है कि द पुलिस इज गोइंग टू इंटेरोगेट द क्रिमिनल, जो पुलिस है वो क्रिमिनल को इंटेरोगेट करने वाली है, इंटेरोगेशन में लेके जा रहे हैं। बेसिकली इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेट करने का मतलब क्या होता है? सवाल पूछना। क्या होता है? सवाल पूछना। इफ समवन विल से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो आप क्या बोलेंगे? Interrogative sentences are those sentences in which we ask questions, in which we ask what? Inaya, can you tell me? Okay, we have only 10 minutes left. Inaya, I ask you to unmute yourself. Yes, Inaya, can you tell me in interrogative sentences what are these sentences? Interrogative sentences में क्या होता है? नहीं समझ आया? Inaya, kindly try to listen carefully, okay? Interrogative sentences are those sentences in which we ask questions. Interrogative sentences में हम question पूछते हैं. Yes, Hassan, you want to ask something? In interrogative sentences, we ask questions. What do we ask? We ask questions in interrogative. You want to ask something, Mariam? Mariam, you want to ask anything? I think your camera is stuck. Mariam, I ask you to unmute yourself. Mariam, you want to ask Yes, anything? I'm asking if do we need to rejoin after 10 minutes? No, we have only one class of English today. Okay? ठीक है, स्टेटमेंट सेंटेंस समझ में आ गया, जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस बेसिकली सिंपल सेंटेंस, जैसे हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा था ना, वही स्टेटमेंट सेंटेंस वैसे होता है। आई एम अ गर्ल, मतलब स्टेटमेंट सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होता, ठीक है? जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, all that type of sentences are called interrogative sentences. All that type of sentences are called interrogative. नंबर 3 आता है आपका exclamation sentence या exclamatory sentence. अब बात आती है what is exclamatory sentence. Wait. अच्छा, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं आपको जरा शो करूं कि सबसे पहले तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो होता है ना, ये जो मैं बना रही हूँ, व्हिच आई एम राइटिंग हियर, दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कौन सा मार्क होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जिस सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, इट मींस इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली होते क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके डेक्लेरेटिव सेंटेंस से बहुत मिलते जुलते होते हैं, यानी स्टेटमेंट सेंटेंस से बहुत रिजेंबल कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इमोशंस आते हैं, आपके
इमोशन जाहिर होते हैं, या तो उसमें आपकी एक्साइटमेंट शो होती है या उसमें आपकी सैडनेस शो होती है। जैसे मैं अगर लिखूं ये आई गॉट द टिकट्स, अब इस सेंटेंस के अंदर आपको कौन सा इमोशन फील हो रहा है? सैडनेस का या एक्साइटमेंट का? एक्साइटमेंट का हो रहा है ना, तो इसके अंदर एक इमोशन आ गया और ये एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर स्टॉप हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे सैड होने के लिए हम वो यूज करते हैं वर्ड अलास, अलास का वर्ड यूज किया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। जैसे हम बोलते हैं ना सैड होके ओ इस तरीके से, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में अलास। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में? और ऐसा कोई भी इमोशन यूज करने के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। जैसे हैप्पी होता है तो हम यूज करते हैं हुर्रे, हम क्या यूज करते हैं? हुर्रे, और एंड में लगा देते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस टाइप के सेंटेंसेस को आप क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आ जाते हैं आपके पास we have only 4 minutes left। मैं आपको एक ये लास्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करूं। अच्छा, कल आपका मैं क्विज लूंगी, ठीक है, ऑनलाइन क्विज लूंगी और आपने वो सॉल्व करना है और वो क्विज रिलेटेड होगा आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर से, और ये जो मैंने 4 सेंटेंस टाइप समझाई हैं आपको इससे रिलेटेड। कमांड सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? देखें, कमांड सेंटेंस के अंदर हम ऑर्डर देते हैं। कमांड सेंटेंस के अंदर हम क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं। अब्दुल्ला अलवी, यू आर वेरी हैप्पी आई गेस, बहुत ज्यादा समझ में आ गया। कैन आई आस्क यू समथिंग अब्दुल्ला? Abdullah, you want to ask anything because you raise a hand. I ask you to unmute yourself, Abdullah. ओके, कमांड सेंटेंस के अंदर हम ऑर्डर देते हैं। कमांड सेंटेंस के अंदर हम क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ मरियम गो एंड ओपन द डोर, ठीक है, मैंने बोला मरियम गो एंड ओपन द डोर। मैंने मरियम को क्या दिया? ऑर्डर दिया। मैंने मरियम को क्या दिया? ऑर्डर दिया। अगर मैंने बोला गो एंड शट द डोर, इसमें मैंने क्या दिया? ऑर्डर। जिस सेंटेंस में हम ऑर्डर देते हैं उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? कमांड सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। कमांड सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूं गो एंड सिट देयर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ, और इफ आई विल से गेट आउट फ्रॉम माई रूम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कमांड्स। ये सब क्या है? ऑर्डर है। ये सब क्या है? ऑर्डर है। और जिस सेंटेंस में हम ऑर्डर दे रहे होते हैं उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? कमांड सेंटेंस। उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? कमांड सेंटेंस। तो हमने कौन से 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े? वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। फास्ट फास्ट रिकैप करते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस और डेक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही बात है, जिसके अंदर हम नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, आई एम वेयरिंग अ रेड फ्रॉक, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड स्टेटमेंट और डेक्लेरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में we are going to ask something, we are going to ask something, ठीक है। Question sentence, for example, what is your name, what are you doing, what are you eating, what are you wearing, am I a good girl, am I your best friend। इस तरीके की जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, all these type of sentences are called क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आ जाता है आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हो। ये सेम होते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस के। डेक्लेरेटिव सेंटेंस से इंटर रिलेट करते हैं, लेकिन इनके एंड में कौन सा मार्क आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इनके एंड में कौन सा मार्क आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है। और इसके अंदर आपके मूड्स, आपके
जो आपका ये कहते हैं उसको इमोशंस के बारे में, जैसे मैं अगर बोलूं हर्रे आई गॉट द टिकट्स, इसमें मेरी एक्साइटमेंट शो हो रही है, आई विल पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, so it will become an exclamatory sentence. ठीक है, लास्ट सेंटेंस है आपका कमांड सेंटेंस और इंपैरेटिव सेंटेंस. कमांड सेंटेंस के अंदर we will give orders. कमांड सेंटेंस के अंदर we will give orders. For example, bring me a glass of water, sit here, do this, do that. All of these commands जिसमें हम order देते हैं is called command sentences or imperative. Understand? Everything is clear? Anybody want to ask anything? Okay, so that's it for today. I hope you all will understand. Tomorrow I will take a quiz of you all of sentence structure and 4 types of sentences. So be ready for it. Okay? All right, everyone. Allah Hafiz. Take care of yourself. Allah Hafiz.